Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today, friends, we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. And if you're calling us from outside Delhi, please do not forget to add 011 as a prefix to these numbers. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है। टेलीफोन नंबर 23314444, 23717106 और 23421050 पर फोन कर आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारे दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले 011 लगाना ना भूलें। सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए आज कार्यक्रम में आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। डॉक्टर यामिनी, नमस्कार। स्टूडियो में आपका स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है लालिमा अनेजा। Thank you, Vishal. Yes, the headlines first. Key domestic stocks witness modest gains. Sensex reclaims the 61,000 mark. Nifty regains 18,200 level. Rupee logs robust gain of 52 paise to close below 82 rupees against the US dollar. And Brent crude price declines to $98 per barrel. प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में हल्की बढ़त दर्ज। सेंसेक्स ने 61,000 के स्तर को फिर छुआ। निफ्टी ने दोबारा हासिल किया 18,200 का स्तर। रुपया 52 पैसे की जबरदस्त तेजी से डॉलर के मुकाबले 82 रुपए से नीचे हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल के दाम गिरकर $98 प्रति बैरल के आसपास। कार्यक्रम की शुरुआत शेयर बाजार से। प्रमुख घरेलू शेयर बाजारों में आज हल्की तेजी रही। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले मजबूत संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज हुई। सेंसेक्स 61,200 के करीब बंद हुआ, जबकि निफ्टी 18,200 के स्तर से ऊपर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.39% चढ़कर 235 अंक ऊपर 61,185 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.47% की वृद्धि से 86 अंक बढ़कर 18,203 पर जा पहुंचा। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.69% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.64% बढ़त के साथ बंद हुए। The Sensex and the Nifty today witnessed modest gains. Both indices rose amid positive cues from global share markets. The Sensex closed near 61,200 points, while Nifty settled above the 18,200 level. Sensex climbed 235 points or 0.39% to finish at 61,185. Nifty also gained 86 points or 0.47% to end at 18,203. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.69%, while the small-cap index ended 0.64% up. In the Sensex pack, 18 companies posted gains, while 12 logged losses. SBI Bank was the top gainer as it added 3.4%, followed by Tata Steel surged 1.8%, ICICI Bank added 1.3%, and Ultratech Cement added 1.2% up.
On the other hand, Asian Paints declined 2.4%, Bajaj Finserv fell 1.4%, Sun Pharma slipped 1.1%, and Titan ended 1% down. In sectoral indices at the BSE, 17 sectors logged gains while 3 logged losses. Oil and gas and auto, both sectors climbed 1.2% each. Realty, metal and energy indices gained 1.1%. On the other side, healthcare index declined 1%. Consumer durables slipped 0.4% and healthcare sector fell 0.2%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 2,052 companies gained while 1,506 fell. Shares of 193 companies remained unchanged. And now we are joined by Dharamveer calling us from Delhi. जी धर्मवीर जी सवाल पूछें. नमस्कार जी. नमस्कार जी सवाल पूछें. हमारे एक्सपर्ट को भी नमस्कार. मैं ये जी नमस्कार. 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो हमें किस एक्सपर्ट से कहाँ जानकारी मिले जहाँ सही हम अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें और हमें इसके बारे में अधिक से अधिक फायदा हो, क्योंकि इसके लिए जानकारी होना बहुत ही जरूरी है. इसके लिए हमें कोई नए फील्ड में आने के लिए क्या हो? जी इन्वेस्टमेंट प्लानर्स होते हैं, आप जिनसे एडवाइस ले सकते हैं. कोशिश कर सकते हैं कि जब निवेश करें तो जितने इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं उनको देख लें. खास तौर पे अगर आप निवेश करना चाहते हैं मार्केट के अंदर तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी निवेश कर सकते हैं. उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसके अंदर आप निवेश कर सकते हैं. आप डायरेक्ट स्टॉक्स में और डायरेक्ट बॉन्ड्स में भी निवेश कर सकते हैं. आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी निवेश कर सकते हैं. आप कितना पोर्शन अपना वॉलेटाइल सिक्योरिटीज में निवेश करना चाहते हैं जैसे इक्विटीज, उसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हैं कि लार्ज कैप्स में करना चाहें, मिड सेगमेंट में करना चाहें या स्मॉल कैप्स में करना चाहें. ऐसे ही डिबेंचर्स में आप निवेश कर सकते हैं जो हाई रेटेड हों या हाई यील्डिंग रिटर्न वाले हों. ऐसे ही जब आप निवेश करें तब आप अपना ऑब्जेक्टिव उन्हें जरूर बताएं कि आप किस पर्पस के निवेश करना चाहते हैं और आप कितना रिटर्न लेना चाहते हैं और आपकी कितनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है. वो उसी के अनुसार आपको इंस्ट्रूमेंट सजेस्ट करेंगे. I mean, is it true that if you want to invest for long-term gains, you invest in large cap, and if for short-term gain, it's small cap and mid cap, or is it just too much simplified a statement? Well, I think it's always important to see that when you make a portfolio, it's a diversified portfolio, yeah. And it meets the objectives that are there. So when you're wanting to invest for a long term, it is necessary that you invest in a quality stock, Right. whether it is mid cap or small cap or a large cap, but it should be a quality stock which promises growth as well as sustainability of the business, and for which the fundamentals are very necessary to keep in mind. Also, while you're investing, you need to know whether you as an active investor can continuously monitor the stock, or you would want a portfolio manager to manage the portfolio for you. If you want somebody to manage it, then the route of a mutual fund is always better for a investor who has not directly entered into the stock market. Right. So it is always best to look at different alternatives and instruments that are available given your risk capacity and risk appetite, then to invest. Right. हुगली पश्चिम बंगाल से तपस कुमार अपने सवाल के साथ फोन लाइन पर हैं. तपस जी, कार्यक्रम में स्वागत. सवाल पूछिए. जी नमस्कार सर. नमस्कार. उपस्थित विशेषज्ञों को भी मेरा प्रणाम. सर मेरा सवाल है, दुनिया में सब देश का पास अपना अपना देश का रुपया बनाने वाला मशीन है, फिर भी क्यों अपना अपना देश को विकसित नहीं कर पा रहा है? यही मेरा सवाल है. जरा बताने का प्लीज कष्ट कीजिए प्लीज. धन्यवाद. जी देखिए, जब आप करेंसी बनाते हैं वो आप कोई भी देश अपनी करेंसी बना सकता है, पर उस करेंसी को बैक करने के लिए कुछ गारंटी होती है. तो पहले जब पेपर करेंसी आई थी तो उसको जो गोल्ड डिपॉजिट्स थे वो बैक करते थे. ऐसे ही जब भी कोई पूर्ति करनी होती है तब सरकार करेंसी प्रिंट करती है, और उस करेंसी प्रिंट करने से क्या होता है कि ओवरऑल जो करेंसी है मार्केट के अंदर वो बढ़ जाती है. क्योंकि सामान लिमिटेड होता है और करेंसी बढ़ जाती है, उससे प्राइसेस बढ़ने लग जाती है. इसलिए सरकार कभी भी कंटिन्यूअसली किसी भी पूर्ति के लिए रुपए को या किसी अपनी करेंसी को प्रिंट नहीं कर सकती, क्योंकि जो सामान जिसे खरीदना है वो एक लिमिटेड है, और अगर वो प्रिंट करती जाएगी तो वो
एक प्राइस लेवल इतना पहुंच जाएगा कि उस करेंसी का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए कभी भी कोई भी सरकार पूर्ति करने के लिए प्रिंटिंग नहीं कर सकती। Right. We're now joined by Vineet Huda from Haryana. Yes, Vineet, please ask a question. नमस्कार, मैं ये जानना चाह रहा था कि मार्केट या बाजार क्या है और मार्केट या बाजार में इकोनॉमी का कौन सा भाग आता है? जी, मार्केट का मतलब होता है इकोनॉमी में जहां पे बायर्स और सेलर्स मिलते हैं। ये एक फिजिकल प्लेस भी हो सकती है, ऑनलाइन प्लेस भी हो सकती है, एब्स्ट्रैक्ट प्लेस भी हो सकती है, पर जहां पर भी एक बायर और सेलर मिलते हैं और आपस में ट्रेड करते हैं उसे हम बाजार कहते हैं। और इकोनॉमी में सभी तरह के बाजार होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर मार्केट में हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, किसी भी प्रोडक्ट की बात करें वो मार्केट होती है जिसके अंदर आप खरीदते और बेचते हैं। जी, और रुक करते हैं अगली खबर का। विदेशी मुद्रा बाजार में आज रुपए में 52 पैसे की जबरदस्त तेजी रही। रुपया 81 रुपए 92 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.28% गिरकर 110.56 पर कारोबार कर रहा था। And now we have Ravi Chandran calling us all the way from Chennai. Yes, Ravi, please ask your question. Hello? China is locked for most of the time. Yes. Is it showing GDP growth? Any study has been done, or is it just the numbers that are being flashed by China and it is being absorbed by the market? Well, there are experts who have been monitoring Chinese economy on a constant basis, and it has been noticed that because there is a constant lockdown and a zero COVID policy which has been implemented by China, there is likely to be a slowdown in their GDP growth. Also, because of the lockdowns, there is also likely to be an effect on the supplies of many of the products where the China has become an important global supplier. So because of that, inflation is likely to happen in most of the economies. That is again going to cause price rises in many of the economies, together with the energy crisis that is likely to lead to a slowdown in most of the economic growths today. ग्रेटर नोएडा से एसपीएस जैन अपने सवाल के साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। हाँ, नमस्कार जी, मार्केट टीम। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज मैंने अखबार में पढ़ा था कि करेंसी नोट का सर्कुलेशन जो 4 साल पहले डिमोनेटाइजेशन की डेट से 75% बढ़ गया है। एक और तो गवर्नमेंट ये जोर दे रही है कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस हों, तो ये क्या वजह है कि अभी भी पब्लिक में इतना करेंसी नोट अवेलेबल है, और क्या ये कोविड की वजह से कुछ उनको डर लगता है या कुछ इसका यूक्रेन वॉर का इफेक्ट है जिससे आदमी सोचता है कि अपने पास करेंसी रखे? जी देखिए, डिमोनेटाइजेशन के बाद से डिजिटलाइजेशन काफी इफेक्टिव हुआ है और लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शंस काफी हद तक की हैं। पर अभी भी कैश एक ऐसी करेंसी मानी जाती है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आप एनईएफटी करते हैं या आरटीजीएस करते हैं उसमें भी चार्ज लगता है आपका। अगर आप स्मॉल पेमेंट्स करें तो पेमेंट बैंक्स के द्वारा जब आप पेमेंट्स करते हैं तो उसमें भी आपका चार्ज नहीं लगता, पर आपको फिर भी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्डेड रहती है। काफी हद तक माना जाता है क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस अनोनिमस होती हैं, तो काफी लोग प्रेफर करते हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस हों और जिसमें उनकी अनोनिमिटी मेंटेन रहे। ऐसी कुछ और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं जिनमें कैश ट्रांजैक्शंस की रिक्वायरमेंट्स पड़ती है, जैसे डेली लेबर्स को पैसा देना जो छोटे अमाउंट का होता है और उनके पास अकाउंट्स नहीं होते। आधार और जो बाकी के डिजिटलाइजेशन के प्रोसेसेस रहे हैं उससे काफी हद तक इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने की कोशिश की है, पर क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी का साइज बढ़ा है, जैसे आपने देखा हो कि अब हम एक 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जीडीपी का साइज बढ़ा है, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है और एक कैश की रिक्वायरमेंट ओवरऑल कोविड की वजह से भी और भी चीजों की वजह से बढ़ी है। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि करेंसी की रिक्वायरमेंट रही है। Right. We have now Shankar online and he is calling us from Bhopal. जी शंकर, सवाल पूछें।
मैडम वो जो कलकत्ता से सवाल पूछ रहे थे उनका सवाल था क्या हम हमारी रुपया करेंसी का पेपर खुद बना रहे हैं और खुद प्रिंट करने की मशीनें हमारी अपनी है, कॉइन मिंटिंग मशीन हमारी है, इस बारे में उनका सवाल था। दूसरा सवाल आपने ये कहा कि रुपया अभी 75% बढ़ गया है प्रिंटेड करेंसी, लेकिन अगर आप देखेंगे डेवलप्ड इकोनॉमी में इतना करेंसी नहीं होती है जितनी जैसे अमेरिका में है, यूके में है, हमारे यहाँ कुछ ज्यादा ही बढ़ी है। जी आप अपना सवाल पूछें तो अच्छा रहेगा शंकर जी। इनका क्या डिमोनेटाइजेशन की क्या सार्थकता हुई? ये देखिए, डिमोनेटाइजेशन को कोशिश किया गया था इसलिए लाया जाए ताकि ब्लैक मनी के ऊपर एक शिकंजा कसा जा सके। कोशिश यही की गई थी कि जितनी जो ओवरऑल करेंसी है उसको एक बार में आइडेंटिफाई करके लोगों के जो पास पैसा है, धन को आइडेंटिफाई करके ब्लैक मनी को खत्म किया जाए। कोशिश ये भी की गई थी कि डिमोनेटाइजेशन के द्वारा एक सुचारू रूप में इकोनॉमी के जो ओवरऑल ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें यूनिफाइड भी किया जा सके। सबसे ज्यादा फायदा पहुंचा है डिजिटलाइजेशन पे, ट्रांजैक्शंस पे और एक इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी में लाने में। इससे काफी लोगों को ये भी फायदा हुआ क्योंकि वो डिजिटल रिकॉर्ड्स रखते हैं, तो अब अगर उन्हें बैंक से लोन लेना है या बैंक से जो है पर्सनल लोन लेना है या अपना बिजनेस के लिए लोन लेना है, वो भी ले पा रहे हैं। और एक स्टडी हमने भी की है जिसमें डिमोनेटाइजेशन में हमने देखा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हुई क्योंकि लिक्विडिटी इमीडिएटली वापस ला दी गई थी। एज फार एज पेपर करेंसी की बात है और मिंट की बात है, वो हमारी अपनी है और हम अपना ही प्रिंट करते हैं। प्रकाश दिल्ली से हैं, अपना सवाल पूछना चाहते हैं। जी प्रकाश जी, कार्यक्रम में स्वागत, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी, मार्केट मंत्रा टीम को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सवाल जरा इकोनॉमी से हटकर है। फ्री स्कीम अनाउंस करते हैं, जैसे कि मैं कहूँ तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें 1000 रुपए दूंगा, वो एक राइम है। लेकिन जब फ्री स्कीमें जो अनाउंस करती है पॉलिटिकल पार्टी की 1000 रुपीज लेडीज के अकाउंट में जाएंगे, बिजली पानी फ्री देंगे, क्या ये उसमें नहीं, रिश्वत में नहीं आता? तो गवर्नमेंट को इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? थैंक यू जी। देखिए, इस बात पे डिबेट चल रही है कि क्या ऐसे जो फ्री के वायदे हैं या फ्री स्कीम्स हैं खास तौर पे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लाई जाएं, जिसमें कैश ट्रांसफर्स की बात की जाए, तो उनके ऊपर कैसे जो है नियंत्रण लाया जाए। जी, and election commission is at the moment very concerned about this fact. Very concerned about freebies. और अब रुक करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। एशियाई शेयर बाजार की बात करें तो आज यहाँ के बाजारों में तेजी रही। हांगकांग के हैंगसेंग में 2.7% का उछाल आया और जापान के निकेई में 1.2% की बढ़त दर्ज हुई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1% लाभ में रहा। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 0.4% और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.2% ऊपर बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान मिला जुला कारोबार देखने को मिला। जर्मनी का डेक्स 0.9% चढ़ा और फ्रांस का कैक 0.2% लाभ में रहा, जबकि लंदन का FTSE 100 0.2% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। We are now joined by Keshav Prajapati calling us from Delhi. जी केशव जी, सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसी सोर्स कैसी जानकारी मिले, जैसे कि अभी हमने लास्ट 6 महीने के अंदर ये देखा है यूक्रेन और रूस के युद्ध के टाइम पर कि साबुन जो 60 रुपए के 5 पीस मिलते थे और उसकी एकदम कीमत 2 महीने बाद 130 रुपए के 5 हो गए मार्केट में। ये और अदर कंपनियों की क्या रेट एकदम डबल रेट हो गए। बताया गया था यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण ऐसा हुआ कि इतना डबल का उछाल आ जाता मार्केट में, या इसमें ऐसा कोई और सोर्स नहीं है जहां हम 20 लाख 50 लाख लगाए और सीधा 1 करोड़ रुपए हमारे को हो जाए, जैसे ये रूस के युद्ध में हुआ है। जी देखिए, यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से काफी हद तक ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमीज पे इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जो क्रूड ऑयल प्राइसेस है वो काफी हाई हो गई और सप्लाई चेन्स जो रॉ मटेरियल्स के थे या और गुड्स के थे उन पे इफेक्ट हुआ है, जिसका सीधा असर प्राइसेस जो गुड्स हैं उसके ऊपर पड़ा है।
क्योंकि प्राइसेस गुड्स की जो है इंक्रीज हुई है, उसका असर अर्निंग्स पे हुआ है और स्टॉक्स में भी हमने काफी हद तक जो है इंक्रीज देखा है। ऐसी जो स्कीम्स होती हैं जो आपको फटाफट पैसा देने की बात करें या बहुत कहीं ज्यादा गुना रिटर्न देने की बात करें, ऐसी स्कीम्स में निवेश करते समय बहुत ध्यान से निवेश करें या 10 बार सोचें, क्योंकि ऐसी स्कीम्स को हम कभी कभार पोंजी स्कीम्स भी कहते हैं, जो लोगों के पैसे लेकर के उड़ जाती हैं। तो जब भी निवेश करें, एक स्कीम का किस माध्यम से वो पैसा कमाएगी और आपको रिटर्न देगी, वो जरूर देखें, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है स्टॉक मार्केट्स में कि कंपनीज भी आई हैं और उन्होंने बहुत अच्छी चीजें लोगों को बताई हैं, लेकिन जो उनका बिजनेस मॉडल है वो ऐसा नहीं था या रेवेन्यू मॉडल ऐसा नहीं था जो रिटर्न्स दे सके, और लोगों ने अपना बहुत पैसा उसमें खोया है। एज द एड से सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। वेल, वी नाउ हैव अनिल आहूजा ऑनलाइन फ्रॉम दिल्ली। यस अनिल जी, सवाल पूछें। गुड इवनिंग टीम। गुड इवनिंग जी। आपकी जो सुझाव है हमें बिना टाइम होते हैं, उसके लिए थैंक यू। और मेरा ये सवाल है कि ये जो ENPS होता है, नेशनल पेंशन स्कीम, इसमें जो विड्रॉ होता है वो क्या 60 ईयर के बाद ही होता है या पहले भी कर सकते हैं विड्रॉ, और कितना कर सकते हैं, प्लीज इसके बारे में कुछ जवाब। आप नेशनल पेंशन स्कीम से जो है विड्रॉल कर सकते हैं 3 साल के बाद। उसके अंदर जब आप विड्रॉल करते हैं उसके रीजंस होते हैं, या तो मैरिज हो या मेडिकल कंडीशंस हो, उसके अंदर आप विड्रॉल्स कर सकते हैं और एक कुछ परसेंटेज अलाउड होता है। यूजुअली 60 के बाद भी जो है टोटल विड्रॉल्स नहीं होते। जी, ठाणे मुंबई से अमर रेड्डी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो। Yeah, hello. Good evening to the entire team. Good evening. Good evening. Good evening. Actually, this is in continuation to one of the questions which was asked earlier in the program with regard to the money being printed. So I do understand that we have to have something in stock so that the money gets printed as a surety or as a guarantee by the government of India. But is the same thing or the same scenario followed in the US, or they just go on printing the money? And if I would be thankful if you don't disconnect the call because I don't have a radio with me. Well, all markets, all central banks, when they issued the currency, gold deposits were their backing. But because the fiat money was much needed for the economic activity of any economy, they started printing the currencies on the backing of the government guarantees. So the government guarantees are the backing, and it is usually considered that since the government owns the country's assets, they are primarily backing most of the currency. So that goes for US as well as for India or for other markets also. So most of them, the backing is by the government guarantee only. All right, Ravi Narayan is with us, calling us from Bhilai. जी रवि जी, अपना सवाल पूछें। देखिए, गुड इवनिंग मार्केट मित्रा। आज मेरा कोई भी सवाल नहीं है, मैं रेगुलर श्रोता हूं और मैं क्वेश्चन भी पूछता रहता हूं। आज अभी आपने कहा कि सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मैंने एक बार पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज वो जो एड होती थी, बहुत फनी एड होती थी लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग एड थी और काफी असरदार थी, वो आपका अच्छा सिग्नेचर ट्यून था कहना चाहिए। प्लीज वो सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर वाला जो एड है उसको फिर से दोबारा स्टार्ट कीजिए। ये मेरा सेकंड टाइम रिक्वेस्ट है। ओके, ठीक है जी, नोटेड जी। और देव कुमार अब हमारे साथ हैं लाइन पर और ये नोएडा से कॉल कर रहे हैं। जी देव जी, सवाल पूछें अपना। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी 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 जी। हमें ये बताइए, श्रीलंका में जो क्राइसिस हुआ था जी, इसका क्या कारण था? ऐसा क्यों हुआ था? देश से इतना बड़ा भूचाल आ गया था श्रीलंका में, इसके पीछे क्या कौन सी बात थी, ये थोड़ी बारीकी से बताएंगे? सिर्फ हमने तो न्यूज में यही सुना था कि श्रीलंका में ऐसे हालात हो गए। जी देखिए, जो श्रीलंका में क्राइसिस हुआ था उसका प्रमुख कारण यही था कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज उन्होंने ऑप्ट की थी, खास तौर पे लोगों को फ्रीबीज देने की या जो टैक्सेस में कमी की थी, उसकी वजह से उनके फिस्कल डेफिसिट्स काफी बढ़ गए थे और उनका जो लोन थे वो भी काफी बढ़ गए थे। तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल इकोनॉमी थी वो सस्टेन नहीं कर पाई और जो करेंसीज थी वो बहुत ज्यादा थी और एकदम से इन्फ्लेशन काफी हद तक उनके बढ़ गया था। तो सभी चीजें बहुत ज्यादा महंगी हो गई थी और फिस्कल डेफिसिट क्योंकि कंटेनेबल लेवल पे नहीं था तो इकोनॉमी क्राइसिस में चली गई थी। The government didn't take the warning signals in Sri Lanka?
No, they actually, what was the prime reason for Sri Lanka was that they continued with a spree of activities which were pro-people and in a manner that did not contain fiscal prudence as one of the important measures, especially in reducing taxes and doing other activities. So they focus more on populist measures rather than on governance measures. जी, और अब बात करते हैं शेयर बाजार की। डॉक्टर यामिनी, आज शेयर बाजार में सेंसेक्स 61,200 के स्तर के करीब पहुंच गया और निफ्टी ने भी 18,200 का स्तर छुआ है। कुल मिलाकर के शेयर बाजार को अब आप क्या दिशा देख रही हैं आने वाले हफ्तों के लिए? जी देखिए, स्टॉक मार्केट्स ओवरऑल क्योंकि एफआईआईज वापस निवेश कर रहे हैं तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में है। कॉर्पोरेट अर्निंग से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लास्ट लेग में है, पर कॉर्पोरेट अर्निंग्स का भी काफी हद तक असर रहा है मार्केट्स में, जो एक पॉजिटिव ट्रेंड इकोनॉमी के तरफ और कॉन्फिडेंस बढ़ाता हुआ रहा है। कुछ पैरामीटर्स जो अफेक्ट करेंगे वो एक तो कंज्यूमर प्राइस, रिटेल प्राइसेस होंगी यूएस की और आपकी यूरोप की और जगहों की, जो इंडिकेट करेंगे कि इन्फ्लेशन कैसा रहता है। वो ये भी इंडिकेट करेंगे कि फेड का आगे चल करके क्या स्टैंस रहता है, क्योंकि अगर डविश स्टैंस हो जाता है, क्योंकि उनके जो जॉब का डेटा है वो काफी अच्छा आया है, इन्फ्लेशन में काफी कमी नहीं आई है, तो अगर वो कम रहता है तो मार्केट्स वापस अपने बुलिश स्टैंस पे रहेंगी। Right. We have Gurunath ji on our line and he's a very regular listener of ours and he's calling us from Thane. Over to you, Gurunath ji. हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा क्वेश्चन था मैम, हेलो। हाँ जी, आप पूछिए सवाल। जी। हाँ मैम, मेरा क्वेश्चन था, अभी ये जो हमारी जो इकोनॉमी है अभी 5वें नंबर पे है, जो हमें इंग्लैंड को भी पछाड़ कर हम 11वें स्थान से 5वें स्थान पे है, तो मैम ये जो हमारे देश में मतलब ये जो पर कैपिटाइज इनकम बढ़ने का कितना संभावना है, हमारी जो कुछ गरीबी है हमारे देश में, और ये जो सब्सिडी का जो बड़े बड़े जो फिगर अमाउंट जो मतलब तो गवर्नमेंट का इशू है मैम, ये जो 2.5 लाख करोड़ 3 लाख करोड़ ये जो मतलब जो अनाज बांटा गया है उसके बाद किसानों को दिया जाता है, और जो खाद के ऊपर जो हाँ, जरा सा जल्दी से सवाल पूछें प्लीज, बिकॉज टाइम कम है। जी मैडम के मतलब हमारे मतलब इसका हमारे इकोनॉमी की क्या असर पड़ता है और जीडीपी पे मतलब बढ़ सकती है ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका जो खर्च होता है तो? जी डॉक्टर यामिनी जी देखिए, सरकार कभी भी जो एक्सपेंडिचर्स करती है वो ओवरऑल इकोनॉमी का वेलफेयर देखते हुए करती है, और जो वनरेबल लोग होते हैं, जो पुअर लोग होते हैं, उनका जो स्तर है उसको बेहतर करने की कोशिश करती है, जिसके लिए सब्सिडीज दी जाती है या वेलफेयर स्कीम्स रन की जाती हैं। कोशिश यही की जाती है कि एक फिस्कल डेफिसिट है उसे अब FRBM के मुताबिक 3% के आसपास मनाया जाए, पर क्योंकि कोविड था तो उसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट को बढ़ा दिया गया। Right, let's take a look at the oil prices now. Well, oil prices today fell marginally. Support from a weaker dollar and recovering Chinese crude imports capped the losses. In intraday trade, Brent crude was trading at $98.25 per barrel, while WTI crude prices were at $92.20 per barrel. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर अनुबंध के सोने की वायदा कीमतें आज 80 रुपए बढ़कर 50,945 रुपए प्रति 10 ग्राम पर थीं। दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 140 रुपए टूटकर 60,775 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना तेजी के साथ $1,680.50 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। डॉक्टर यामिनी, आप कार्यक्रम में शामिल हुई और श्रोताओं के सवालों के इतने अच्छे से जवाब दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। And friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Key domestic stocks witness modest gains. Sensex reclaims the 61,000 mark. Nifty regains 18,200 level. The rupee logs robust gain of 52 paise to close below 82 rupees against the US dollar. And Brent crude price declines to $98 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Vishal Sharma, signing off. नमस्कार। Market Mantra.